I think we had started with the event delegation model, right? Event delegation model में हमने क्या क्या चीजें देखी थी? We were saying that basically in event delegation model what we have, हमारे पास तीन चीजें important रहती हैं. What were the three things? We had an event, we had the event sources, and we had the event listeners. ठीक है, event क्या होता है? Where there is any, जैसे आपने किसी यूजर ने बटन क्लिक करा, कोई टेक्स्ट फील्ड में आपने वैल्यू एंटर करी, right? So what it is going to generate some sort of a this is some kind of an action which is being performed by the user, right? User अगर कोई भी action perform करता है तो this is what is it is kind of an event. An event, how they are generated? They are generated with the help of an event source, right? Event source हमारे पास अच्छा है. In Java we have everything in the form of objects, right? राइट, हमारे पास क्या होती है, हर चीज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहती है. ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस लाइक इवन द इवेंट्स व्हिच आर अकरिंग, they are also available to you in the form of an event class, right? So we had talked about the event delegation model, जहाँ पे हमारे पास तीन चीजें थी. क्या क्या चीजें थी? एक आपका इवेंट सोर्स होता है, right? Then is the event, and then you have your event listener, right? What is the source? Source is like any object which is going to generate that event. जैसे आपका बटन हो गया, if you have a front end, you're clicking the button, right? So it is a source which is interacting like आपका controller है, right? It is a control in your GUI with the user once it clicks on it, right? So it is going to generate some kind of event, right? And for in your event delegation model, what do we have? एक हमारे पास आपका जो GUI है या आपका जो front end है, उसको हमने segregate कर दिया है from your back end piece of code, right? जो उस event को handle करेगा, उसके लिए हमारे पास क्या है? We have got certain listeners, right? So we had got your user interface logic, जो कि आपके पास एक GUI present करता है, where you have got your controllers, you have got your controls in the form of objects. These controls are the ones which are through which the user is going to interact, right? जिनको हम क्या बोलते हैं? Sources भी बोलते हैं. Now these can be your buttons, these can be your text fields, these can be your check boxes. We'll be discussing all these controls, how they are being used by the user for generating of your events, right? And then what we have your third thing, which is the most important, is your event listeners. What is an event listener? जब भी हमारी कोई event होती है, what we have to do? We have to register our certain listeners with that particular piece of code. Like we have to register it to a source, right? हमारा source जो event को generate कर रहा है, उसके corresponding हमें कुछ लिसनर्स रजिस्टर करने पड़ते हैं, जिनका काम क्या रहता है? दे विल बी रिसीविंग द नोटिफिकेशंस whenever such an event is occurring, and whatever logic the आप जो भी उसमें अपना लॉजिक लिखते हैं, जो भी जैसे भी आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उसके अकॉर्डिंग that response will be sent back to your front end. तो event delegation model जावा का आपका क्या कहता है? आपको यही करना है कि जो आपका your user interface logic is going to be separated from your your backend piece of code, right? आपका जो उस इवेंट को हैंडल करेगा, जो आपका लिसनर होगा, जो इस इवेंट के लिए रिस्पॉन्स देगा, that will be separate piece of code, right? So event delegation model, according to that, you had got your three sources. What are the three sources? First is your event, right, which is again an object. And how do you identify it? It is जहाँ पे कहीं पे भी उसकी स्टेट में कहीं पे भी चेंज हो रहा हो, like when you're clicking a button, it is a change in the stage on the in the state of that particular source, right? Or if you have a text field, आप उसमें कुछ टाइप कर रहे हो, empty कर रहे हो, delete कर रहे हो, adding some keys, this is again what a source in which there will be some change in its state, right? And what we have to do for these event sources, we have to register those listeners, जिनका काम क्या रहेगा? To receive the notifications whenever there is some changes occurring in those event objects, and you have to write your piece of code which is going to respond according to it, right? तो हमारे पास event classes कौन कौन सी रहती हैं? We had discussed about your action event. हमने action event किस में देखा था? When we had designed a applet, right, which you have a window in which you were placing your बटन, राइट? आप बटन को क्लिक करते थे तो क्या होता था? मे बी सम मैसेज वाज बीइंग डिस्प्लेड टू द यूजर, राइट? So similarly, there can be events where you're scrolling your window. There can be some events where you're pressing the key. कहीं पे आपकी mouse event हो सकती है. तो we had seen all of these, right? So this is your event class. Next, what comes is your sources of the event. Sources of the events which are going to generate those events. These sources, what can they be? They can be a button. They can be a checkbox.
These are also called your AWT controls. इनको हम controls भी बोलते हैं, क्यों? जब आप इन्हीं के आप controls को place करते हो अपने window के ऊपर, जिसके ऊपर user आपका उसी से interaction आपका initiate करता है, right? So what are these sources? These can be a button, checkbox, your text components, they can be a window. So we will be discussing about all these sources of events, right? And then last, what do we have? We have got the event listeners. Event listeners का क्या काम रहता है, right? Event listeners, what they are going to do, आप these are provided by your package known as in आपका AWT में, ये आपका package provided रहता है java.awt.event package, right? In this you have got a number of interfaces, right? आपके पास interfaces हैं जिनके methods को आप implement कर सकते हो, right? First foremost, what we need to do, we need to register your listener to that particular source. When that source is going to generate some event, how this event will be generated? When the user is interacting with your controls, जैसे कि आपका text field, checkbox, जो भी आपने अपने GUI में controls डाले हैं, उससे जब आपका user interact करेगा, it is going to generate some events, and at the back of it you have to implement the interfaces for it, right? आपको इन listeners को register करना पड़ता है. Listeners का काम क्या रहेगा? They will be just keeping a track. They will be informed with the help of a notification कि इनको जब भी आपकी event generate हो रही होगी, and you have got methods within that जिनको आप क्या कर सकते हो? You can implement them, right? So there are number of event classes there. These are your event listener interface, not event classes. These are your event listener interfaces. Which are those event listener interfaces? You've got your action listener, you've got your adjustment listener, you have got your component listener, right? आपके पास mouse motion listener है, right? If there is any activity being performed with the help of your mouse, where you're shifting, moving it, right? You're rotating the wheel of the mouse. In that case, there will be a listener associated with it. Or in the case of action listener, we have seen कि हमने जैसे action perform क्या हो सकता है कि आपने कोई text field में value डाली, आपने enter press करा, या आपने you are clicking some list, you are selecting some item. So these are all those sources of your events, right? And for that we have to have an action listener for it, right? So this is how your event delegation model is going to work, right? हम दो examples इसके देखेंगे. We had seen it in last class also, I guess, about mouse events and your keyboard events, right? कि आपका एक appropriate इंटरफेस, राइट, आप इम्प्लीमेंट करते हो, राइट? आप जो भी आप उस इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग लिसनर यूज करना चाहते हो, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. उसके मेथड्स आपको यूज करने पड़ेंगे. उन मेथड्स में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप प्रोसेस करना चाहते हो उस इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, यू हैव टू राइट इट दैट, right? And accordingly, and your response will be generated and the user will be informed of it. So is it clear your event delegation model? जहाँ पे आपके पास तीन चीजें क्या क्या हैं? एक आपकी इवेंट है, एक आपका इवेंट का सोर्स है, और एक आपकी इवेंट लिसनर्स है, राइट? इवेंट लिसनर्स हमारे पास कैसे अवेलेबल रहते हैं? दे आर गिवन अस इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेसेस. आप इन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करिए, राइट? आप इनको इम्प्लीमेंट करके इनके मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप जो भी अपना लॉजिक करना चाहते हैं, जिस तरह से आप यूजर के साथ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, इंटरेक्शन करना चाहते हैं, यू कैन प्लेस इट देयर, right? Like we had seen this example. Can you all view my code? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right, so we had seen two events. दो events का हमने एग्जाम्पल देखा था. कौन सा देखा था? एक आपका माउस इवेंट्स था और एक दूसरा सिंपल आपका की प्रेस इवेंट था. ठीक, माउस इवेंट पे हमने क्या करा था? हमने एक छोटी सी एप्लेट बनाई थी, विच वाज अ स्मॉल विंडो इन विच वी हैड इम्प्लीमेंटेड टू लिसनर्स, राइट? कौन से दो लिसनर्स थे? एक माउस लिसनर था, एक माउस मोशन लिसनर था, राइट? अब ये इंटरफेस है, तो इनके जितने भी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, हमें उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू because they're just giving you the declaration of the methods. Then आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो भी आप अपना कोड डालना चाहो डाल सकते हो, राइट? तो हमने क्या करा, इस विंडो के साथ जो हमारी एप्लेट की विंडो थी, राइट, वी आर एडिंग टू लिसनर्स फॉर इट. ये हमारा क्या हो रहा है? इवेंट को हम जो भी इवेंट अकर होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिसनर को रजिस्टर कर रहे हैं, राइट? And what will be the source of this event? Source of this event will be your applet window itself. आप applet window के ऊपर जब भी आप क्लिक करते थे या माउस को मूव करते थे, राइट, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इवेंट जनरेट होता था. इवेंट क्या होता है हमारा? यहाँ पे माउस इवेंट हो सकता है, जिसके हमने दो ऑब्जेक्ट्स अपने
अपने एज पैरामीटर आपको अवेलेबल होते हैं, कहाँ पे होते हैं, जो आपने इंटरफेस इंप्लीमेंट करा है उनके मेथड्स के विद इन, राइट. सो वी हैव these four methods which are being provided by your mouse listener. There are some methods which are जैसे आपका drag करने का है, mouse dragged event, ये आपका provide हो रहा है with the help of your mouse motion listener. Then you have your mouse moved event, right? So these are all those what do you say, ये आपके सारे listeners हैं जिनके methods को आप implement करते हो, and within that you can write your own piece of code. जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, simply status user को दिखा रहे हैं, right? So let us see this code, run this code. One more thing, I would request all of you to use Eclipse. ठीक है, आप Eclipse पे ही अपनी programming करिए for development of your codes and all. Right, I will be sharing you the lab file details also. तो उसको आप इस पे ही develop करने की कोशिश करिए. Right. तो हमारे यहाँ पे इवेंट क्या हो रही है, वी आर मूविंग द माउस, राइट, माउस एंटर्ड, राइट, माउस एग्जिटेड, और whatever the coordinates you're mentioning where you're moving a mouse or you're dragging the mouse, right. तो ये सारी हमारी क्या हो रही है, these are events which are occurring, and what we are doing for these events we have implemented certain listeners. पहले हमने register करा इस event को, इस source को with a event listener, right, and उनका काम क्या रहेगा, इनको इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके रिस्पॉन्ड को जनरेट करना, राइट. तो हमने यहाँ पे क्या करा कि whenever your mouse is being dragged, whenever your mouse is being moved, we are showing these things in your status window, right. Other than that what we can do, हमारे पास अच्छा applet life cycle का अपना है ही है, एक आपके पास मेथड कौन सा रहता है, if you want to display some message to the user, then you have got your paint method. So within that what we are doing, we are simply mentioning the coordinates जिसमें आपका, जहाँ पे आपका माउस मूव हुआ है. तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीजें हैं, एक आपका सोर्स ऑफ द इवेंट है, सोर्स क्या है, आपकी विंडो हो गई, राइट, जो आपका एप्लेट है विच यू आर पासिंग, जिसका आप रेफरेंस यहाँ दिस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास कर रहे हो. देन यू आर रजिस्टरिंग दिस पर्टिकुलर सोर्स with your event listeners. यहाँ पे हमने कौन से event listeners लगाए, mouse listener और mouse motion listener. फिर हमने क्या करा, इन event listeners के corresponding जो भी हमारे पास इसमें methods थे, right, we have to implement those methods जिसमें आप अपना logic डाल सकते हो, right, and then before that we have to, हमारा जब ये applet init method call होगा, जब हमारी applet first time आपकी open होगी, तो हमने क्या करा, इन सोर्स ऑफ इवेंट्स के साथ आपके लिसनर्स को रजिस्टर करा, राइट. सिमिलरली वी हैड सीन योर कीबोर्ड इवेंट्स आल्सो. कीबोर्ड इवेंट में क्या था, इसमें भी हमने एक आपके एप्लेट विंडो के साथ ही एक की लिसनर डाला, जिसका काम क्या था कि इफ यू प्रेसिंग एनी की, इट इज गोइंग टू कैप्चर दैट इवेंट एंड सेंड द कॉरेस्पॉन्डिंग योर इवेंट ऑब्जेक्ट टू द लिसनर, राइट. आपने यहाँ पे अपने लिसनर को अपने इवेंट सोर्स के साथ रजिस्टर करा, राइट. हमारा यहाँ पे कौन सा लिस्टर है, की लिस्टर. ये क्या करेगा, कोई भी आपकी कीबोर्ड की की से रिलेटेड जो भी इवेंट जनरेट होंगी, राइट, इट वाज गोइंग टू कैप्चर दैट पर्टिकुलर इवेंट, राइट, एंड you can implement the methods of it, and accordingly whatever logic you have you can show it there, right. And so these are your two simple examples of your event delegation model. So is it clear till now? Any confusion here, how your Java is handling events using your event delegation model? Please respond. Is it clear? Yes. So now what we have seen is that हमारे पास जितने भी event listeners हैं, they are available in the form of your interfaces. और interfaces का एक हमारे पास limitation क्या है कि interfaces में जितने भी आपके methods होते हैं, they are not concrete methods, right? आप उसमें सारे के सारे methods को सिर्फ declaration डालते हो. It is not a concrete class at all, right? तभी आप इसका one interface and your many methods का जो polymorphism का logic रहता है, आप interface के through you are able to implemented, right.
बट देर आर केसेस जब हमें जो भी आप लिसनर लगा रहे हो, जो भी इंटरफेस यूज कर रहे हो, उसके सारे के सारे मेथड्स, राइट, यू मे नॉट नीड टू इम्प्लीमेंट, राइट, आप नहीं चाहते हो उन सारे मेथड्स के पीछे कोई ना कोई आप लॉजिक डालो. तो वी हैव गॉट अनदर गुड फीचर इन जावा विच इज कॉल्ड योर अडेप्टर क्लासेस. अडेप्टर क्लासेस का क्या लॉजिक है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर इंटरफेसेस, राइट, फॉर योर लिसनर क्लास, आप उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हर जो मेन आपके इंटरफेसेस हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास अडेप्टर क्लासेस अवेलेबल है. अडेप्टर क्लासेस का क्या यूज रहता है कि जो मेथड्स आप जिनका लॉजिक आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो सिर्फ उनको ही ऐड करो, राइट, रेस्ट ऑफ द मेथड्स विल बी अवेलेबल टू यू इन द फॉर्म ऑफ योर एम्प्टी मेथड्स, राइट. तो इंटरफेस में क्या प्रॉब्लम आती थी कि अगर कोई भी आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, अपने अपने एप्लेट में ऐड कर रहे हो, देन यू हैव टू राइट द all the methods which are there in that interface, you have to implement those, right, even if it is not required. जैसे हो सकता है कि mouse event के corresponding आपको mouse press event को ना capture करना हो, right, या mouse release को ना करना हो, only when you are typing with the key or when you are entering the mouse, सिर्फ आपको ये event capture करनी हो, but you had to implement all of the methods when we were using an interface. तो उसका एक alternative हमें दिया गया है in the form of your अडेप्टर क्लासेस. अडेप्टर क्लासेस का क्या लॉजिक रहता है कि आपके पास जो इवेंट लिसनर्स अवेलेबल हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग यू हैव योर क्लासेस आल्सो व्हिच आर आल्सो गोइंग टू डू द सेम फंक्शन. उनका काम वही रहेगा जो आपका लिसनर इंटरफेस करता था, बट दे आर मोर यूजफुल व्हेन you do not want to handle all the events provided by that particular listener interface. आप सिर्फ कुछ ही मेथड्स को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आपके पास हर एक इंटरफेस के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ अडेप्टर क्लासेस अवेलेबल रहती हैं, राइट. जैसे हम एक छोटा सा डेमो देखते हैं, राइट. वी हैव योर अडेप्टर क्लास डेमो विच इज योर मेन क्लास जो आपका एप्लेट है, राइट. आप यहाँ पे एक विंडो ओपन करोगे, उसमें आपने कौन से दो लिसनर्स लगाए हैं, एक एड माउस लिसनर लगाया है और एक एड मोशन लिसनर लगाया है, माउस मोशन, ठीक. एक आपके माउस के इवेंट्स को कैप्चर करेगा, दूसरा इफ यू आर मूविंग योर माउस, प्रेसिंग, ड्रैगिंग द माउस, कोई मोशन से रिलेटेड जो उसके इवेंट्स होंगे उनको कैप्चर करेगा. अभी तक हम क्या करते थे, वी वर यूजिंग द सेम एप्लेट फॉर एज योर सोर्स ऑल्सो एंड एज योर लिसनर ऑल्सो, राइट. हम यहीं पे करते थे ना, एक्सटेंड्स एप्लेट एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स द कॉरेस्पॉन्डिंग लिसनर, राइट. तो वहां पे हमारा सोर्स और हमारा लिसनर जो भी होता था हमारे इवेंट का, दैट यूज्ड टू बी in the same piece of code. Now what we are doing, हम अपना जो आपका फ्रंट एंड जो आपका एप्लेट है उसके पीस ऑफ कोड को हम एप्लेट योर अडेप्टर डेमो क्लास में डालते हैं, राइट. और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम लिसनर्स लगा रहे हैं उनकी हम अलग क्लासेस बना रहे हैं, राइट. व्हाट आर दीज टू क्लासेस, एक आपका माई माउस अडेप्टर है और दूसरा माई माउस मोशन अडेप्टर है, ठीक है. आपके मोशन क्लास आपने बनाई है जो आपके माउस के मोशन के इवेंट्स को कैप्चर करेगा, दूसरा सिंपली आपके माउस के इवेंट्स को कैप्चर करेगा, राइट. तो यू आर हैविंग दिस विंडो व्हिच इज योर एप्लेट जिससे आपका यूजर इंटरैक्ट करेगा, आपकी विंडो ओपन होगी and corresponding to it you have added two listeners. What are those listeners? Your my mouse adapter and my mouse motion adapter, ठीक है. आपने दो listeners लगाए, यहाँ पे हम इनके इंटरफेस ना यूज करके we are using your adapter classes for it, right. तो ये आपने जो अगर दो लिसनर्स लगाए हैं, एक माय माउस अडेप्टर लिसनर और दूसरा हमारा लिसनर कौन सा है, माय मोशन अडेप्टर लिसनर, ठीक है. तो इनको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी एप्लेट के साथ रजिस्टर करना पड़ता है, तभी तो दे विल बी रिसीविंग द नोटिफिकेशंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर इवेंट्स एज दे आर जनरेटिंग, राइट. तो यहाँ पे हम रजिस्टर करने के लिए क्या करते हैं, अपने एप्लेट के इनिट मेथड में वी आर एडिंग दिस एड मोशन लिसनर एंड एड माउस मोशन लिसनर, राइट. ये हमारी इवेंट्स आपके इन सोर्सेज ऑफ इवेंट्स के लिए आपने लिसनर को रजिस्टर कर दिया. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन दो क्लासेस का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट. वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, राइट. एंड देन दिस इज गोइंग टू जो क्लास में आपने इसका इन अडेप्टर क्लास के मेथड से जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, right, they will be receiving the notification for this particular kind of event and accordingly जो भी आपने उसमें कोड लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके आपको एप्लेट में देगा, राइट. सो
Okay, and here again, as I said, we are not making use of your interfaces. We are using your classes for it. जैसे आपका mouse adapter class है, and the other is your mouse motion adapter class. अच्छा, adapter class है, as I said, adapter class का main use क्या रहता है कि हम ये adapter classes आपकी empty implementation of all the methods which are there in your event listener interface आपको provide करती हैं, क्योंकि आपको ये empty methods provide कर रही हैं, so you do not need to implement all of the methods which are there in that particular interface, right? So now when we are creating this object, right, जब हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो हम अपने करंट एपलेट का जो आपका यूजर से इंटरैक्ट करेगा उसका रेफरेंस दिस कीवर्ड के थ्रू पास कर रहे हैं, राइट. दिस विल बी डेलीगेटिंग द जो भी आपका इवेंट जब जनरेट होगा, दैट योर मॉडल विल डेलीगेटेड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग पीस ऑफ कोड जो इस इवेंट को हैंडल करेगा. वो हमारा कौन सा कोड है? दिस इज योर माई माउस अडेप्टर, राइट. Within that we have your constructor. ये constructor क्या कर रहा है? आपके जो मेन applet class है जहां से यूजर इंटरेक्शन स्टार्ट कर रहा है, राइट, उसका रेफरेंस उठाकर एक आपका विद इन दिस क्लास आपने जो इंस्टेंस वेरिएबल बनाए हैं अडेप्टर डेमो उसमें सेट कर रहा है. एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज थ्रू दिस ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू यूज द शो स्टेटस मेथड विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय योर एपलेट, राइट. क्योंकि हमारी बेस एपलेट कौन सी है? आपकी मेन एपलेट ये है जहाँ पे इवेंट्स आपके जनरेट होंगे, और इन इवेंट को हैंडल करने के लिए हमने दो लिसनर्स लगाए. कौन से दो लिसनर लगाए हैं? We have added my mouse adapter listener and the other is your my motion adapter listener, right? And what they're going to do, they're simply going to extend your adapter classes, and उस adapter classes की corresponding सिर्फ एक event को हम handle करना चाहते हैं. कौन सी वो event है? हमारी handle mouse clicked, राइट. तो इसमें हमने अपनी बेस अडेप्टर क्लास जो थी उसका रेफरेंस दिस ऑब्जेक्ट के थ्रू करा, उसको हमने सेट करा अपने यहाँ के इंस्टेंस वेरिएबल में, राइट. दिस इंस्टेंस वेरिएबल इज फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास, right, and then through this instance variable we are going to use the show status method जो आपके mouse click event को के corresponding आपका response generate करेगा, right. So you are able to understand what is the use of adapter classes and how your event delegation model एक आपको source दे रहा है, right, जो आपका user से interaction करता है. The source is going to generate an event. This event is going to be ये जो आपको source है ये कुछ listeners के साथ register करेगा. उन listeners का क्या काम रहेगा? जब भी वो source उस event को generate कर रहा है उनके पास ये सारी notifications जाएंगी, and then correspond they have these listeners have to correspond to your नोटिफिकेशन, राइट. आप उसमें जो भी कोड लिखोगे उनके मेथड्स में जो भी आप इन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन करोगे दे विल बी रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू इट. सो दिस पार्ट इज क्लियर. And why we have two options of adding listeners to your events, right? हमारे पास इंटरफेसेस के फॉर्म में आपके लिसनर्स अवेलेबल हैं. आप एक से ज्यादा लिसनर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट. एंड दी अदर बट विद आपका एक कंस्ट्रेंट क्या हो रहा था, रिस्ट्रिक्शन क्या हो रहा था? जब आप इंटरफेस को यूज कर रहे हो यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल द मेथड्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दैट इंटरफेस, राइट. सेकंड ऑप्शन व्हाट डू वी हैव कि हर एक इंटरफेस के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जावा ने कुछ अडेप्टर क्लासेस दी हैं. उनका काम क्या है कि they are providing you with empty implementation of the methods which are provided by your corresponding event listener interface, right. तो आपको उन सारे के सारे methods का कोड लिखने की जरूरत नहीं. सिर्फ उन जिन मेथड्स को जिनमें आपको कुछ रिस्पॉन्स डालना है, जिस इवेंट को आपको कैप्चर करना है, सिर्फ उन्हीं इवेंट्स के मेथड को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है. और ये एक्चुअल एग्जांपल है आपके इवेंट डेलीगेशन मॉडल का. कैसे कि यहाँ पे आपकी एक मेन एपलेट क्लास है, कौन सी है? अडेप्टर डेमो, जिसमें आपने इन्हें उसके जब वो आपका विंडो ओपन होगी इट विल बी दैट पर्टिकुलर एपलेट इटसेल्फ विल बी द सोर्स ऑफ दैट इवेंट. आप कौन से यहाँ पे इवेंट्स कर रहे हो? दे आर रिलेटेड टू योर माउस. दिस कैन बी अ माउस लिसनर और दे कैन बी अ माउस मोशन लिसनर, राइट. और जब भी ये कोई इवेंट को जनरेट करेंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने अपना एक पीस ऑफ कोड लिखा है, राइट. वी हैव डेवलप्ड टू अदर क्लासेस व्हिच आर गोइंग टू respond to these particular events, right. They are going to act as listeners for these particular events, right. तो हमारे पास कौन सी दो क्लासेस हैं? एक की माई माउस अडेप्टर है, दूसरी आपकी माई माउस मोशन अडेप्टर है.
right? And here instead of using the interface as listeners, we are using the adapter classes, जिसका हमें benefit ये है कि हमें सारे methods within that interface implement करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ mouse clicked एक मेथड था, राइट? सिर्फ ये एक लिसनर हमें डालना था कि अगर जब भी आपका माउस क्लिक हो रहा है सिर्फ उस इवेंट को हमें कैप्चर करने की जरूरत है, राइट? तो वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द अडेप्टर क्लासेस हियर, राइट? बट यहाँ पे हमारा सेग्रीगेशन ऑफ कोड है। सेग्रीगेशन कैसे है कि हमारा एप्लेट सोर्स ऑफ द इवेंट जो सोर्स की तरह यूज हो रहा था, इट इज बीइंग प्रोवाइडेड एज अ डिफरेंट क्लास, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमने लिसनर्स डाले हैं वो हमने दो अलग अलग क्लासेस में करे हैं, ठीक? और इन दो अलग क्लासेस को हमने अपने मेन एप्लेट क्लास जो अडेप्टर डेमो है उसमें रजिस्टर करा है। कैसे रजिस्टर करा है? विद द हेल्प ऑफ दिस ऐड माउस लिसनर एंड ऐड माउस मोशन लिसनर, राइट? और इसमें हमने क्या करा, वो जो क्लासेस जो लिसनर की तरह एक्ट करेंगे उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे और इस क्लास का रेफरेंस दिस कीवर्ड के थ्रू पास कर दिया। तो जब भी आपका माउस से रिलेटेड इवेंट्स आपके इस एप्लेट में जनरेट होंगी, द कॉरेस्पॉन्डिंग events such as your clicking of the mouse or if you're dragging the mouse, they're going to be captured, उनके notifications जाएंगे इन दो listener classes के पास, and जो भी आपने इसमें इतना logic लिखा होगा they will be responding according to it. Like here what we are going to do, हम यहाँ पे अपना status show कर रहे हैं कि mouse आपका click हुआ है या यहाँ पे आपका mouse drag हुआ है। तो is it clear? Adapter classes का क्या use रहता है? Simple है, आपका जो लिसनर इंटरफेस कर रहे थे वही काम आपका अडेप्टर क्लासेस भी कर रहे हैं। बस आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलना है कि इंटरफेस में जितने भी मेथड्स उस इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर रहा था उनको इंप्लीमेंट करना पड़ता था। अडेप्टर क्लासेस क्या कर रही है कि हमें एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड्स दे रही हैं। जो मेथड को आप ओवरराइड करना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग लॉजिक डालना चाहते हो, आप उसको ओवरराइड कर दो, अदरवाइज यू हैव योर एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड्स, राइट? सो इज इट क्लियर अडेप्टर क्लासेस? अडेप्टर क्लासेस का क्या यूज है, इवेंट डेलीगेशन मॉडल क्या है, इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट के सोर्सेस क्या होते हैं, आप उन सोर्सेस के कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे लिसनर्स को रजिस्टर करते हो। लिसनर्स का काम क्या है? सिंपली नोटिफिकेशंस रिसीव करना व्हेनेवर दैट सोर्स इज जनरेटिंग सम इवेंट, राइट? एक सोर्स के साथ आप एक से ज्यादा लिसनर्स को रजिस्टर कर सकते हो, राइट? लाइक हियर वी आर रजिस्टरिंग टू लिसनर्स, वन इज योर माउस इवेंट्स एंड द अदर वन इज योर listeners, your events related to your mouse motion, right? So your event delegation model, use of adapter classes, all these things are clear? Please respond. Akif Ansari. Shweta, yes ma'am, is it clear? yes Event ma'am. delegation model, राइट? हमारे पास क्या इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट सोर्सेस क्या होते हैं, हमारे पास इवेंट लिसनर्स कैसे होते हैं। लिसनर्स के पास दो ऑप्शंस हैं, यू कैन टेक इट इन द फॉर्म ऑफ अडेप्टर क्लासेस, आल्सो यू कैन हैव योर इंटरफेसेस प्रोवाइडेड बाय जावा, राइट? Then when we were studying earlier the concept of classes and objects, तो हमारे पास एक term आया था inner classes का, right? Where we can have classes within another class, right? Here we will actually see why inner classes concept came and what is its use. Applet में हमारा inner classes का बहुत सा use रहता है। कैसे रहता है कि अभी आपने जो ऊपर एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने क्या करा था कि आपका जो यूजर का जो GUI पार्ट था, राइट, जो यूजर से इंटरैक्ट करता था, यस मैम एप्लेट में आप बता रही थी मैम, इसको मैम ब्राउजर में मैम लोड कर सकते हैं मैम, ब्राउजर पे रन होता है। हाँ, तो मैम ब्राउजर पे रन करने का मेरा डाउट ये था मैम, ब्राउजर पे मैम ये रन ब्राउजर ऐप जावा फाइल को लोड करता है कि उसके लिए हमें जावा के लिए भी कोई कंपाइलर चाहिए? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी तक के हम कैसे एप्लेट को रन करते थे टेस्टिंग पर्पस के लिए, वी सिंपली एडिंग दोस एप्लेट टैग्स विद इन द कमेंट्स, राइट? एंड yes, हाँ, और आप सिंपली उसको एप्लेट व्यूअर के थ्रू या जैसे मैं एक्लिप्स के थ्रू कर रही थी तो वी वर रनिंग इट, आई वाज रनिंग इट एज अ जावा एप्लेट, राइट? तो आपका विंडो वहीं पे ओपन हो जा रहा था। बट एप्लेट का एक्चुअल यूज कब आता है? जब आप HTML के साथ उसको मर्ज करते हो, राइट? तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने कोड को रन करिए, उसको कंपाइल करिए। आप कंपाइल करोगे तो आपको क्या आएगा? आपको डॉट क्लास फाइल आएगी, राइट? व्हेन यू yes, यूजिंग जावा सी, राइट? yes, ठीक, फिर आप सिंपली क्या करिए, जहां पे भी आपको ये एप्लेट पे मतलब जो आपको ये एप्लेट को ऐड करना, एप्लेट क्या है? आपका डायनेमिक कंटेंट आपके HTML पेज में ऐड करने के लिए यूज होती है, राइट? तो व्हेन आई वाज टीचिंग अर्लियर, So I had told you how you can add your applet within your HTML page, right? आप अपने HTML पेज के within कैसे उस applet को fit कर सकते हैं।
गो थ्रू दैट स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आपका HTML पेज है, राइट, आपकी .html फाइल है, इसमें आप सिंपली डाल दिए एप्लेट कोड इक्वल टू जो भी आपकी .class फाइल है। तो जब भी आप इस HTML पेज को अपने ब्राउजर पे ओपन करेंगे, राइट, तो आपने जहाँ पे ये एप्लेट टैग डाला होगा उतने पोर्शन में ये जो आपका फर्स्ट .class जहाँ पे आपने अपना जावा का कोड डाला है और उसको कंपाइल करके उसकी .class फाइल जनरेट करी है, that particular piece of code will be automatically called by your browser। और कैसे कॉल होगा, एप्लेट के लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, कि आपका पहले इनिट मेथड होता था, फिर आपका स्टार्ट होता था, फिर आपका पेंट मेथड कॉल होता था। अगर आपने उसको मिनिमाइज कर दिया देन योर स्टॉप मेथड विल बी कॉल्ड, राइट। If you're closing, then your destroy method will be called. So this way, your applet can be used with your HTML code, and you can open that applet from the browser. मैम पर मैम ये जो मैम फर्स्ट .class जो फाइल होगा मैम जावा का कोड होगा, हाँ, इस कोड को मैम हमें पहले ही कंपाइल फॉर्म में रखना होगा कि हाँ, हमारा हाँ, ब्राउजर नहीं कंपाइल ब्राउजर नहीं होना चाहिए, नहीं कंपाइल .class फाइल है ना, क्लास फाइल तो जब आप कंपाइल करोगे तभी जनरेट होगी। और तो इसका मींस मैम ब्राउजर मैम .class फाइल एक्सेप्ट करेगा। हाँ, क्योंकि आपने उसको एप्लेट टैग के लिए डालना है। ये सिंपली क्या करेगा, एप्लेट जो आप टैग यूज कर रहे हो, दिस विल बी कॉलिंग दिस पर्टिकुलर क्लास फाइल। और जैसे आप देखिए जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं, राइट, तो कैसे रन करते हैं, जावा एंड स्पेस एंड द नेम ऑफ द क्लास फाइल, राइट, ऐसे तो आप रन करते हैं, राइट। और उसमें क्या होता है, आपका सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होता है, कौन सा मेथड को आप सबसे पहले सर्च करते हैं, आपका मेन मेथड को। हाँ, तो वो कौन सी होती थी एप्लीकेशंस, आपकी कंसोल ड्रिवन एप्लीकेशंस रहती थी, राइट, जिसमें आपने, राइट, कंसोल के थ्रू आपका जब प्रोग्राम रन करते हैं तो आपका मेन मेथड ढूंढते हैं, ठीक, मेन मेथड में फिर आपने जो लॉजिक लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क होता है। अगर वहाँ पे यूजर से इंटरएक्शन होता है तो आप क्या करते हो, कंसोल पे ही लिखते हो कि system.out.println प्लीज एंटर दिस वैल्यू, राइट, फिर यूजर आपको रिस्पॉन्ड करता है, राइट, आप खुद यूजर को प्रॉम्प्ट करते हो, ठीक, कि आप कोई ना कोई वैल्यू इनपुट करो। बट इन द केस ऑफ एप्लेट क्या है, यहाँ पे हमें कोड को प्रोग्राम के थ्रू आपको इंटरैक्शन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, यूजर यहाँ पे आपका इंटरैक्शन स्टार्ट करे, तभी हम उसको इवेंट ड्रिवन मॉडल बोलते हैं, राइट। कैसे आप करते हैं कि आपने ब्राउजर में मान लिया आपकी कोई भी HTML फाइल है, उसमें आपने ये एप्लेट का टैग डाल दिया, उसमें आपने मेंशन क्या कर दिया कि इस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ दैट HTML पेज पे हमें ये एप्लेट का कोड रन करना है। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे अभी तो बहुत ही बेसिक्स एप्लेट्स पढ़ रहे हैं, राइट, जिसमें हमने माउस इवेंट्स और हम की प्रेस इवेंट्स, अदरवाइज एप्लेट्स आर यूज्ड बेसिकली फॉर एनिमेशंस एंड ऑल, जहाँ पे आप एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो, या आपको कोई डायनेमिक कंटेंट चेंज करना है, डायनेमिक इन द सेंस आप देख रहे हैं कि जब आप माउजर पे आप उस पे एप्लेट पे क्लिक कर रहे हो, राइट, उसके अकॉर्डिंग इट इज शोइंग यू द स्टेटस कि आपने कहाँ पे क्लिक करा, राइट, डायनेमिक कंटेंट आप यहाँ पे शो कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जैसे ये एप्लेट टैग इसको मिलेगा, इट विल बी रनिंग दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड। अब इसको रन करने का तरीका क्या होगा, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर द मेन मेथड, इसकी एप्लेट की अपनी एक लाइफ साइकिल है, ठीक है। लाइफ साइकिल में हमने क्या क्या देखा था, सबसे पहले आपका कौन सा मेथड कॉल होता था, इनिट होता था। हाँ, इनिट मतलब क्या हो गया, जब फर्स्ट टाइम आपकी एप्लेट खुल रही है, तो उसी में देखिए ज्यादातर जो कंपोनेंट्स के पार्ट होते हैं, जो भी कंट्रोल्स आपके होते हैं, वही पे हम इनिशियलाइज कर देते हैं। उन कंट्रोल्स या जो सोर्सेज ऑफ इन इवेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें लिसनर्स डालने हैं, राइट, उनका रजिस्ट्रेशन हम वहीं पे कर देते हैं इनिट मेथड में, राइट, कि अगर जब भी ये कंपोनेंट या जब भी ये कंट्रोल आपका कोई भी इवेंट को जनरेट कर रहा है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लिसनर को रिस्पॉन्स देना है वहीं पे हम रजिस्टर कर देते हैं, राइट। फिर आपको जो रिस्पॉन्ड करना है, आउटपुट देना है, आप आउटपुट नॉर्मल कंसोल बेस्ड प्रोग्राम में कैसे करते थे, system.out.print के थ्रू करते थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेंट मेथड यूज करते हैं फॉर डिस्प्लेइंग एनी मैसेज टू द यूजर, राइट। तो नेक्स्ट मेथड, अच्छा, फिर आपका इनिट मेथड हुआ, उसके बाद नेक्स्ट मेथड कौन सा, ब्राउजर ही आपका कॉल करता है, वो आपका स्टार्ट मेथड होता है। स्टार्ट मेथड का मतलब होता है कि जब भी वो पीस आपका जो दैट पार्ट ऑफ द HTML पेज जब भी लोड हो रहा हो, मे बी आपने स्क्रॉल कर दिया हो या मिनिमाइज कर दिया हो, फिर आप जब उसी पोर्शन पे जाओगे तो दोबारा से आपका एप्लेट का स्टार्ट मेथड में जो भी आपने चीजें लिखी होंगी वो दोबारा से कॉल होगा। उसके बाद आपका पेंट मेथड कॉल होता है, पेंट मेथड जिसमें आप यूजर को मैसेज डिस्प्ले करते हो। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, पेंट के विदिन हम हमें पेंट मेथड में कौन सा पैरामीटर अवेलेबल रहता है, ग्राफिक्स का, राइट, ग्राफिक जी ऑब्जेक्ट मिलता है, उसके थ्रू हम ड्रॉ स्ट्रिंग कर रहे थे, या हम कोई रेक्टेंगल बना रहे थे, कोई आर्क बना रहे थे, ऑल दीज थिंग्स वी वर डूइंग।